سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑا سا اس کو کم کیجئے گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو، یا رسول اللہ ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو۔ منبر نور پر علماء کرام کا مقدس قافلہ جلوہ بار ہے۔ علماء کرام کے چہرے کی زیارت کیجئے، مجھ سے کچھ باتیں آپ سماعت کر لیجئے۔ حضرات، جلسہ ہر دن نہیں ہوتا، جلسہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اور جب جلسہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو آپ اسے اہمیت دیجئے، آپ اس کی قدر کیجئے۔ ظاہر ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا اسلام کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے، ہماری شریعت نے کیا ضابطہ ہمیں دیا ہے، میرے آقا نے زندگی گزارنے کا کیا سلیقہ ہمیں بتایا ہے۔ ان باتوں کو جاننے کے لیے کتابوں کے مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کر سکیں۔ ظاہر ہے سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے آپ اپنے اپنے کام پہ چلے جاتے ہو۔ جو آدمی کاشتکار ہوتا ہے وہ کھیت چلا جاتا ہے، جو دکاندار ہوتا ہے وہ اپنی دکان پہ چلا جاتا ہے، جو آدمی سروس کرنے والا ہوتا ہے وہ آفس چلا جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی ضرورت سے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو اپنے گھر پلٹتے ہیں، پھر تھکے ہارے رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے پھر اپنے اپنے کاموں میں نکل جاتے ہیں، کتابوں کے مطالعے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہم کب سمجھ پائیں گے ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے؟ ہم یہ کب جان سکیں گے ہمارے مذہب کا قانون کیا ہے؟ ہم یہ کیسے سمجھ پائیں گے ہماری شریعت نے ہماری زندگی کی کیا حد بندی کی ہے؟ ہم یہ کیسے سمجھ پائیں گے کہ میرے مصطفیٰ نے زندگی گزارنے کا ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے؟ ہم یہ کیسے سمجھ پائیں گے؟ حضرات، جب کتابوں کے مطالعے کی فرصت نہیں ملتی، یہی وہ جگہ ہے جہاں آ کر کے انسان سیکھتا ہے ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، ہماری زندگی گزارنے کا دستور کیا ہونا چاہیے۔ 2-4 گھنٹے آپ جلسے کی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ کو ان باتوں کو جاننے کا موقع ملے گا جو سالوں مطالعہ کرنے کے بعد معلوم نہیں ہوتا۔ جلسے کی ایک رات میں اتنی باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے آپ کا خاطب آپ کے ساتھ وفاداری کرے۔ اگر کوئی خطیب آپ کو لطیفہ سنا کر وقت گزار دیتا ہے، قہقہے لگوا کر اپنا وقت برباد کر دیتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، آپ کے ساتھ وہ غداری کرتا ہے، آپ کے ساتھ وہ گھاٹ کرتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس قیمتی لمحے کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ اسے کام میں لایا جائے۔ ویسے مجھے کیا غرض ہے، آپ کی ذاتی زندگی سے ہمیں کیا بحث ہے، آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو نعت پاک کے 4 مصرے میں پہلے سناؤں، پھر آپ سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ محترم دوستو،
बुजुर्गों, अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं बड़े पते की बात करूं आपके सामने, आपको घबराना नहीं है। 40 मिनट का वक्त मेरे पास है। इस वक्त 11:20 से 22 मिनट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 12 बजते बजते मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, वक्त खत्म हो जाएगा, तकरीर खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस 40 मिनट के अंदर आपको किसी मंजिल पे पहुंचा के छोड़ूं। मैं वो खतीब नहीं हूं कि रास्ते में आपको छोड़ दूं। मैं मंजिल का पता नहीं बताता, मंजिल तक पहुंचाता हूं। हज़रात, जिंदगी के साथ मेरी बातों को समाप्त कीजिएगा। मुझे क्या बहस है आपकी जिंदगी से, हमें क्या गरज है आपकी जिंदगी से। आप अपनी जाती जिंदगी कैसे गुजारेंगे, आपकी निजी जिंदगी में हम दखल अंदाजी करें, मुझे कोई हक नहीं है। आपको पूरा पूरा इख्तियार है हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। तवज्जो से मेरी तरफ देखिए और मेरी तकरीर का एक एक लफ्ज आप मोहब्बतों के साथ समाप्त कीजिए। ऑपरेटर साहब, आपके माइक पर पहली बार नहीं कई बार बोल चुका हूं। आप बहुत अच्छी सेटिंग करते हैं, बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है, सहारा भी मिलता है। मैं चाहता हूं एक एक लफ्ज ये लोग मेरा सुने और समझे भी, इसलिए कि मैं जो बोलता हूं थोड़ा तेज रफ्तार बोलता हूं। जल्दबाजी में कहीं ऐसा न हो कि मेरे जुमले मिस हो जाएं। आप ऐसी सेटिंग करें कि ये लोग एक एक लफ्ज समझे। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी परेशानी तो इसके लिए मुझे उठानी पड़ेगी, इसलिए कि जब माइक में इको दिया जाता है तो आवाज को सहारा ज्यादा मिलता है, मगर मैं परेशानी बर्दाश्त कर लूंगा। आप थोड़ा सा साउंड से बढ़ा के रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। आपको मोहब्बत से सुनिए। मैं अर्ज ये कर रहा था, आपकी निजी जिंदगी से मुझे कोई बहस नहीं। आप जैसी जिंदगी चाहो गुजार लो, हमें कोई हक हासिल नहीं है। आप धामनगर में रहते हो, मैं भागलपुर बिहार में रहता हूँ। आप धामनगर में रहते हो, अल्लामा अख्तर जिया साहब कटक में रहते हैं। आप धामनगर शरीफ में रहते हो, हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुर में रहते हैं। हम लोगों को क्या मतलब है जी कि आप कैसे जिएंगे। आप जैसी जिंदगी चाहो जी लो, आप जैसी जिंदगी चाहो जी लो, हमें कोई बहस नहीं है, हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें कोई गरज नहीं है। आप चाहो तो अपनी जिंदगी शराब पीकर गुजार दो, आप चाहो तो अपनी जिंदगी ज़िना खाकर भी गुजार दो, आप चाहो तो जिंदगी झूठ बोलकर गुजार दो, आप चाहो तो गद्दारी करके जिंदगी गुजार दो, आप चाहो तो बदमाशी के साथ जिंदगी गुजार दो, आप चाहो तो आवारगी के साथ जिंदगी गुजार दो, आप चाहो तो गद्दारी करके जिंदगी गुजार दो, आप चाहो तो ताश की पत्तियों पर जिंदगी बर्बाद कर दो, आप चाहो तो कहवा खाने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो, आप चाहो तो शराब के अड्डों को आबाद करके जिंदगी गुजार दो, आप चाहो तो तहज्जुद गुजार भी बन जाओ, आप चाहो तो तकवा शहार भी हो जाओ, आप चाहो तो वफादार भी हो जाओ, आप चाहो तो नमाजी भी हो जाओ। हमें कोई गरज नहीं है आपकी जिंदगी से। आप कैसी जिंदगी अपनी गुजारेंगे, किसी को कोई बहस नहीं है, मगर एक साथ है जिसे आपकी जिंदगी से बहस है, जिसे आपकी साथ से सरोकार है, जिसे आपकी जिंदगी से करार है, जिसे आपकी जिंदगी से बहस है, जिसे आपकी जिंदगी से मतलब है, वो साथ परवरदिगार की है। जिस परवरदिगार ने आपको जिंदगी अता फरमाया है उसे तो बहस है। मेरे बंदे कैसे जिएंगे, मेरा बंदा कैसे जिएगा, मेरा बंदा ऐसे जिए कि वो जन्नत में चला जाए, वो जन्नत में चला जाए। उस परवरदिगार का तो मतलब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपने मतलब की जिंदगी चाहे गुजार ले, मगर देखो जिस परवरदिगार ने आपको जिंदगी अता फरमाया है, आपको जिस परवरदिगार ने पैदा फरमाया है, उसने एक कानून मुरत्तब फरमाया, उसने एक ज़ाब्ता बताया, जिंदगी का एक ज़ाब्ता बताया, जिंदगी गुजारने का एक तरीका बताया, जिंदगी गुजारने का एक सलीका बताया, एक कानून मुरत्तब फरमाया। बंदे मेरे कैसी जिंदगी गुजारेंगे, तो बंदों की जिंदगी रहने के लिए, बंदों की जिंदगी के लिए और जिंदगी गुजारने के लिए परवरदिगार ने एक नमूना पेश किया, और वो नमूना आकाए कायनात की शक्ल में है। सुभान अल्लाह। आकाए कायनात की शक्ल में है, वो ज़ात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, जो हमारे लिए नमूना बनाकर भेजा है। अब हमें अपनी जिंदगी गुजारना है, मगर नमूना सामने रखना है, अपना आइडियल सामने रखना है, नमूना सामने रखना है। हमें चलना है तो मेरे मुस्तफा का चलना कैसा है, हमें मुस्कुराना है तो मुस्तफा का मुस्कुराना कैसा है, हमें सफर करना है तो मुस्तफा का
का सफर करना कैसा है, हमें बच्चों की तरबियत हासिल करनी है, हमें बच्चों को तरबियत देनी है। ये मुस्तफा ने बच्चों को तरबियत किस तरह से दी थी। आकाए कायनात की जिंदगी का एक एक लम्हा आप देखते चले जाओ, जिंदगी गुजारते चले जाओ। हमें तो बहस नहीं है, मगर परवरदिगार को तो बहस है। परवरदिगार को आपकी जिंदगी से तो मतलब है, परवरदिगार आलम को आपकी जिंदगी से तो बहस है। मेरे बंदे जिंदगी कैसे गुजारेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ अब धूम ना बना लो, अब अपनी जिंदगी का आइडियल बना लो। ग्रामी सच्चाई ये है, अगर आप सच बोलने कहो तो मैं बात कहता हूँ। नौजवानों एक बात सुनो, गौर से बात सुनो। मैं खुसूसी तौर पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। माशरा अच्छा बनाने के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए अपने अंदर इनकलाब लाना होगा। जब इनकलाब दुनिया में इंसान लाता है तब एक अच्छा माशरा बनता है, तब एक अच्छा समाज बनता है, तब एक अच्छी सोसाइटी बनती है। कौन माशरा बदलेगा, कौन समाज बदलेगा, कौन सोसाइटी बदलेगा? वो जमात नौजवानों की होती है, वो काफिला नौजवानों का होता है, वो टोली नौजवानों की होती है। इसलिए कि गुनाह जो जन्म लेते हैं वो नौजवानों से गुनाह जन्म लेते हैं। बूढ़े गुनाह कर नहीं सकते, अब उसके अंदर गुनाह की सलाहियत नहीं है। नौजवानों से गुनाह होते हैं, नौजवानों से जुर्म होता है, नौजवानों से खताएं होती है। अपनी खताओं को रोक दो, गुनाहों को रोक दो, जुर्म करना बंद कर दो, अच्छा माशरा होगा, अच्छा समाज होगा, अच्छी सोसाइटी होगी। आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे? आपको आइडियल बनाना है अपने नबी की जिंदगी को, कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे? मगर हैरत इसी बात की है, आज के हमारे नौजवानों ने, बुरा मत मानना नौजवानों, मैं आपका हमदर्द हूँ, इसलिए आपकी जिंदगी का इलाज कर रहा हूँ, आपकी खराबियों का इलाज कर रहा हूँ, आपकी कोताहियों का इलाज कर रहा हूँ। अगर हमदर्द नहीं होता आपका तो मैं भी लतीफे सुना के चला जाता, मैं भी कहे लगवा कर चला जाता, मैं भी बेवकूफ बना कर चला जाता। मगर नहीं, एक आलिम की जिम्मेदारी ये होती है, उसे अपना मनसब याद रहना चाहिए, अपना पोस्ट उसे याद रहना चाहिए, अपना ओहदा उन्हें याद रहना चाहिए। मैं वही बात करूंगा जो मेरे आका को करना पसंद है, मेरे आका को जो पसंद है वही बात करूंगा। आपकी तबीयत की बात नहीं करूंगा, आपके मतलब की बात नहीं करूंगा, आपकी तबीयत की गुफ्तगू नहीं करूंगा, आपकी तबीयत के मुताबिक खिताबत नहीं करूंगा, आपकी तबीयत के मुताबिक मैं तकरीर नहीं करूंगा। आपकी तबीयत तो कुछ भी हो सकती है ना, आपकी तबीयत कुछ भी हो सकती है। आप तवज्जो दीजिए, मेरे एक एक लफ्ज को सुनिए। आपकी तबीयत कुछ भी हो सकती है, आपकी तबीयत तो ये भी हो सकती है कि शराब पिए, आपकी तबीयत ये भी हो सकती है जुआ खेले, आपकी तबीयत ये भी हो सकती है आवारा हो जाए, आपकी तबीयत ये भी हो सकती है ज़िना कर डाले, आपकी तबीयत ये भी हो सकती है झूठ बोल लिए जाए। आपकी तबीयत की बात नहीं करूंगा, इसलिए कि आपकी तबीयत सिर्फ तबीयत है, मैं नबी की तबीयत की बात करूंगा। इसलिए ये नबी की तबीयत, नबी की तबीयत तो शरीयत है, नबी की तबीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। आपकी तबीयत सिर्फ तबीयत है, मुस्तफा की तबीयत तो शरीयत है। तवज्जो आपकी है? कितने लोग सुन रहे, जरा एक बार हाथ उठाएं। मैं कभी कभी आपकी बेदारी का एहसास चाहता हूँ इसी अंदाज से, मैं कभी कभी हाथ उठाऊंगा, सुन रहे हैं कि नहीं। हज़रात मैं आपका कोई ख्याल नहीं करूंगा, आपकी तबीयत से मुझे कोई बहस नहीं है, आपकी तबीयत का मुझे कोई बहस नहीं है, आपके ख्याल का मुझे कोई मतलब नहीं है। आपका ख्याल कैसा होता है, आपकी तबीयत कैसी होती है? आपने तो अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या अपना लिया है कि देखो आज नौजवानों को तो देखो, किसी ने कान में बाली डाल लिया है, अपना आइडियल बना लिया, किसी ने शाहरुख खान को, किसी ने अपना आइडियल बना लिया आमिर खान को, किसी ने अपना आइडियल बना लिया सलमान खान को। आप कहेंगे मौलाना साहब सैयद जमाल बाबा के उर्स में आए हो और इस तरह की बात कर रहे हो। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, आप सैयद जमाल बाबा के उर्स में बैठे हुए हो, आप सैयद जमाल बाबा साहब के मानने वाले हो और आइडियल बनाते हो शाहरुख खान को, आइडियल बनाते हो आमिर खान को, आइडियल बनाते हो सलमान खान को। देखा सलमान ने बाली डाला, हमने भी डाल लिया, सलमान ने हाथ में काला डाला, हमने भी डाल लिया, सलमान ने देखा आधे सर का बाल छिलाया, आधे में रखा, हमने भी कर लिया। मैं कहता हूँ तेरा हीरो सलमान नहीं हो सकता, तेरा हीरो शाहरुख नहीं हो सकता, तेरा हीरो कोई आमिर नहीं हो सकता, तेरा हीरो तो हुसैन है, तेरा हीरो तो मौला अली है। अपना आइडियल मौला अली को बना लो। जिंदाबाद, नारे
مولا علی ہے, تیرا ہیرو تو جمال بابا ہے, تیرا ہیرو تو مجاہد و ملت ہے, پھر کسی اور خان کو کاہے بنانے جا رہا ہے؟ اگر کسی خان ہی کو ہیرو بنانا ہو اعلیٰ حضرت خان کو بنا لو. ہیرو ماننا ہو تو اعلیٰ حضرت کو مانو, آئیڈیل بنانا ہو اعلیٰ حضرت کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہو مجاہد ملت کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہو حافظ ملت کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہو تو جمال بابا کو بناؤ. آپ کی طبیعت کی کوئی بات نہیں کروں گا, میں تو نبی کی طبیعت کی بات کروں گا. نبی کی طبیعت شریعت ہوتی ہے, آپ کی طبیعت صرف طبیعت ہے. آپ کی طبیعت کی بات نہیں کروں گا, کچھ باتیں کروں میں. ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہمارے اندر جو کوتاہی ہے, ہمارے اندر جو خرابی ہے, وہ خرابی دور ہونا چاہیے, وہ کوتاہی دور ہونا چاہیے. جرم کرنا ہم بند کر دیں, خطا کرنا ہم بند کر دیں, گناہ کرنا ہم بند کر دیں. نوجوانوں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ کے اندر حرکت آ جانی چاہیے, آپ کے اندر حرکت آ جانی چاہیے, آپ کے اندر انقلاب آ جانا چاہیے, آپ کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے. جمال شاہ بابا کے عرس کی کمیٹی کے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا, اس میں 90% کمیٹی کے اندر 90% نوجوانوں کی جماعت ہے. 10% لوگ ایسے ہوں گے جو ادھیڑ عمر کے یا بوڑھے لوگ ہوں گے, ضعیف العمر ہوں گے. باقی نوجوانوں کی جماعت اس کمیٹی میں ہے. نوجوان ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, نوجوان ہی زیادہ متحرک ہیں, نوجوان ہی زیادہ دلچسپی سے کام کر رہے ہیں. میں نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اے جمال بابا کے عرس کی کمیٹی کے لوگوں, ذرا غور سے میری باتوں کو سننا. آپ کو بدلنا ہوگا, ایک اچھا سماج بنانا ہوگا, ایک اچھا سوسائٹی بنانی ہوگی, ایک اچھا معاشرہ بنانا ہوگا. اچھا معاشرہ بنانے کے لیے نوجوانوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کہو, جس کی عمر 15 سال کی ہے یا جس کی عمر 20 سال کی ہے, 25 سال 27 سال یا 30 سال کی ہے, 15 سے لے کر 30 سال کے بیچ کی جن کی عمر ہے, وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جلدی سے ذرا کھڑے ہو جائیں. ٹائم کم ہے, کچھ بات میں کہوں گا آپ سے. جن کی عمر 15 سے 30 سال کے بیچ کی ہے, وہ لوگ جلدی سے کھڑے ہو جائیں. 15 سے 30 سال کے بیچ کے لوگوں کو میں نے کھڑا کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں تو 80% نوجوان ہی نظر آ رہے ہیں, یہ 15 سے 30 سال کے بیچ کی عمر کے لوگ ہیں. میں اگر آپ کو تھوڑی سی اور زحمت دیتا ہوں, اسٹیج کے قریب آپ آئیے تاکہ علماء دعائیں دے کر آپ کو رخصت کرے. ایک اہم بات آپ کو بتاؤں گا, آپ مجھے بھی دعائیں دے کر جائیں گے. مولوی آیا تھا کیا ہمیں پیغام دے کر گیا ہے, مولوی آیا تھا کیا تحفہ دے کے گیا ہے. اسٹیج کے قریب جلدی سے آ جائیے, سمٹ جائیے. وہ لوگ جو پیچھے لوگ ہیں, نوجوانوں کا قافلہ قریب آ جائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جلدی سے آئیے, دیر مت کیجیے. آپ لوگ بڑے اچھے ہیں جی, آپ لوگ بڑے سچے ہیں جی, آپ لوگ بڑے ہیرے ہیں جی, آپ لوگ بڑے انمول ہیں. آپ کا کوئی جواب نہیں ہے, آپ کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ کا خیال بھی اچھا ہے, آپ کی فکر بھی اچھی ہے, آپ کی نیت بھی اچھی ہے, آپ کا ارادہ بھی اچھا ہے, آپ کی نیت بھی اچھی ہے. آپ بڑے اچھے لوگ ہیں. میں آپ سے صرف یہ کہنا کہ یہ بلایا ہوں آپ کو, آپ آ گئے ہو تو سن لو. آج کے بعد فیصلہ کر لو, ہمیں جو کچھ کرنا ہے اچھا سماج بنانے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے, اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے, اچھا معاشرہ بنانے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم اتنے نوجوان انمول ہو گئے, کیا آپ کی نظر میں یا کسی اور کی نظر میں؟ اب آؤ میں بتاتا ہوں. آپ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب میں نے مکہ کی سرزمین پر اعلان کیا اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں, اللہ کو ایک مانو, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو, میں اس کا رسول ہوں, مجھے رسول مانو, مجھے رسول تسلیم کرے. بات بہت بڑی تھی, بات بڑی اونچی تھی, بات بڑی اونچی تھی, بات بہت بڑی تھی. آقا فرماتے ہیں جب میں نے کہا اللہ ایک ہے مانو, میں اس کا رسول ہوں تسلیم کرو, تو مکہ کے بوڑھوں نے نظر انداز کر دیا, نوجوانوں نے میرا ساتھ دے دیا. نوجوانوں نعرہ تکبیر, جب میرے آقا کا ساتھ نوجوانوں نے دیا ہے تب اسلام آگے بڑھا, جب سجدے ہوئے ہیں تب تلاوت کھل کے ہوئی ہے. اے نوجوانوں, آج بھی ضرورت ہے سہارے کی. آج کے نوجوان تم ہو, اگر تم نہ سہارا دو گے تو کون دے گا, تم نہ ساتھ دو گے تو کون. ارے واہ 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 واہ. سجدے کو نوجوانی کی ضرورت ہے.
सजदे को जरूरत है जवानी की, तकवे को जरूरत है जवानी की, रोज़े को जरूरत है जवानी की, नमाज को जरूरत है जवानी की, तिलावत को जरूरत है जवानी की, इस्लाम आगे बढ़े तो जरूरत है जवानी की, कोई इस्लाम पे उंगली उठाए तो उंगली तोड़ने के लिए जरूरत है जवानी की। इसलिए मैं कहता हूँ आप समझ जाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता है, इस्लाम आगे बढ़ता जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठिए, यही बैठिए, कहीं मत जाइए, यही बैठिए जल्दी से, देर मत कीजिए। एक बात मैं कहता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी लगाइए जो मैं कहता हूँ, गौर से सुनिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अब कहना यह है, तवज्जो आपकी है, कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाए तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, मुस्कुराने की जगह नहीं, ये रोने की जगह है, ये आंसू बहाने की जगह है। अपने अमल को देखो और याद करो। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, अभी मेरी थोड़ी देर के लिए हमारे अब्बा की उम्र के जो लोग होंगे ना, मेरे चचा की उम्र के जो लोग होंगे ना, वो लोग सोच रहे होंगे मौलाना साहब ने नौजवानों को तो सुना दिया खुशखबरी, नौजवानों को तो बिशारत सुना दिया, मगर मेरे आका का फरमान सुन लीजिए ना मेरे चचा, मेरे आका का फरमान सुन लीजिए ना मेरे अब्बू, आप भी सुन लीजिए, खुश हो जाइएगा। मेरे आका ने फरमाया कि बूढ़ों की ताजीम किया करो, बूढ़ों की कद्र किया करो, बूढ़ों का एहतराम किया करो, इसलिए कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को इसलिए रद्द नहीं करता है कि उसके पके हुए बालों से खुदा की शान ये है कि उसके बाल जो पके हुए हैं उसकी दुआ को टालने के लिए अल्लाह शान के मुताबिक उसे हयात, उसकी दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। आप बेटों के हक में दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और ऐ नौजवानों, एक बात मैं बताऊं, बहुत मोहब्बत करते हो ना जमाल शाह बाबा से, मोहब्बत करते हो, कितने लोग मोहब्बत करते हो? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात मैं कहता हूँ, तल्ख तो लगेगा, मेरा जुमला बड़ा तल्ख होता है, मगर सच बोलूंगा मैं, हक बोलूंगा मैं बोलता हूँ। हज़रात, जब आज का नौजवान थोड़ा कमाना शुरू कर दिया, गुर्बत में अब्बा ने पाला, गरीबी में अब्बा ने पाला, बड़ी मेहनतों मशक्कतों के बाद बेटे को जवान किया, और बेटा जब किसी लायक हुआ, पैसे कमाने लगा, मारुति कार खरीद लिया, पैसे कमाने लगा, बड़ी बिल्डिंग बना लिया, पैसे कमा लिया, दौलत जमा हो गई, बेटा घर से निकल रहा था, बाप ने कहा बेटे एक बात करनी है तुमसे, जरा सा टाइम दो ना। बेटे ने कहा अभी टाइम नहीं है, जा रहा हूँ, ऑफिस का टाइम हो गया है, जा रहा हूँ, दुकान खोलने का टाइम हो चुका है, बाद में आऊंगा तो बात कर लूंगा। इतना मगरूर हो गया बेटा, इतना दौलत पे घमंड हो गया बेटे को, इतनी अपनी जरूरत हो गई कि अब्बा की बात भी सुनना गवारा नहीं करता। अब मेरे आका का फरमान यह है कि तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप तेरा उसी जन्नत का दरवाजा है, मेरा बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। कभी कभी अपने दरवाजे के पास बैठा करो, जन्नत के दरवाजे के पास बैठा करो। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, जमाल शाह बाबा से बहुत मोहब्बत करते हो आप, मुजाहिद मिल्लत से बहुत मोहब्बत करते हो, गौसे आजम से बहुत मोहब्बत करते हो, गरीब नवाज से बहुत मोहब्बत करते हो, मंदा नवाज से बहुत मोहब्बत करते हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अरे नौजवानों, एक बात मेरी सुनो, उलमाए किराम मेरी बातों की तारीफ फरमाएंगे। याद रखना, तेरे बाप का मकाम क्या है मैं बताऊं, तेरे बाप का मकाम क्या है बताओ, तेरे बाप की अजमत का अंदाजा लगाओ, तेरा बाप का मंतबा क्या है, तेरे बाप का मनसब क्या है, तेरे बाप का पोस्ट कितना ऊंचा है। ए गरीब नवाज के आस्थाने पे जाने वाले, ए गौसे आजम के दर पे जाने वालों, ए महबूब इलाही के दर पे भीख मांगने वालों, तेरा बाप गौसे आजम तो नहीं हो सकता, तेरा बाप गरीब नवाज तो नहीं हो सकता, तेरा बाप महबूब इलाही तो नहीं हो सकता, तेरा बाप मुजाहिद मिल्लत तो नहीं हो सकता, तेरा बाप जमाल शाह बाबा तो नहीं हो सकता, मगर खुदा की कसम तेरे लिए तेरा बाप गौसे आजम है, तेरा बाप तेरे लिए गरीब नवाज है। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, तेरे लिए तेरा बाप गौसे आजम है, तेरे लिए तेरा बाप गरीब नवाज है, तेरे लिए तेरा बाप मुजाहिद मिल्लत है। जितनी मोहब्बत मुजाहिद मिल्लत से करते हो, उतनी मोहब्बत अपने बाप से करो। मुजाहिद मिल्लत मुस्कुराएंगे, जमाल शाह बाबा मुस्कुराएंगे। तबीयत आपकी लग रही है, कुछ बोलूं मैं? 5-7 मिनट टाइम बचा हुआ है और
एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौर से मेरी बातों को सुनिए। आपकी तबीयत की कोई बात नहीं करूंगा। आपकी तबीयत तो कुछ भी हो सकती है ना, तबीयत कुछ भी हो सकती है आपकी। आपकी तबीयत से हमें क्या बहस है? हमें बहस है मुस्तफा की तबीयत से। मेरे आका की तबीयत क्या है, मेरे आका का ख्याल क्या है, मेरे आका की पसंद क्या है, मैं बताऊं। आपकी तबीयत तो हो सकती है कि जुआ खोले, आपकी तबीयत तो हो सकती है कि झूठ बोले, आपकी तबीयत हो सकती है कि दगा करें, आपकी तबीयत हो सकती है कि बेवफाई करें, आपकी तबीयत हो सकती है कि किसी के साथ आंखें लड़ाएं, मगर मेरे नबी की तबीयत यह है कि नमाजी हो जाओ, नबी की तबीयत यह है कि तहज्जुद गुजार हो जाओ, नबी की तबीयत यह है तकवा शिआर हो जाओ, नबी की तबीयत यह है कि सच्चे हो जाओ, नबी की तबीयत यह है कि माँ की इज्जत करने वाले हो जाओ, नबी की तबीयत यह है कि बाप का एहतराम करने वाले हो जाओ। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, अब अपनी तबीयत का कुर्बान कर दो, अपनी पसंद को मुस्तफा की तबीयत पे कुर्बान कर दो, अपनी पसंद को नबी की तबीयत पर, नबी के पसंद पे कुर्बान कर दो। देखो हमें क्या पसंद है, हमें अपनी पसंद का ख्याल नहीं करना है, मेरे नबी को पसंद क्या है, मेरे आका का ख्याल क्या है, मेरे आका की तबीयत क्या है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, आदमी अपनी तबीयत बदल नहीं सकता है, आदमी अपनी पसंद को बदल नहीं सकता है, आदमी अपना नेचर नहीं बदल सकता है, आदमी अपनी फितरत को नहीं बदल सकता है, अपनी आदत को इंसान नहीं बदल सकता। लोग कहते हैं ना नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता है, न नेचर बदल सकता है न सिग्नेचर बदल सकता है। आप बदल तो नहीं सकते हो, ये बहुत बड़ा मसला है। कोई अपना नेचर नहीं बदल सकता, अपनी आदत को बदल नहीं सकता, मगर मैं आपसे कहता हूँ अपनी आदत को बदलो मुस्तफा की खातिर, अपनी फितरत को बदलो मुस्तफा की खातिर, अपने ख्याल को बदलो मुस्तफा की खातिर, अपनी पसंद को बदलो मुस्तफा की खातिर। ये है तो बड़ा मुश्किल काम, मगर कर लेना होगा। इसलिए करना होगा कि सहाबा ने अपनी पसंद को कुर्बान कर दिया और नबी के पसंद को अपना लिया, नबी की तबीयत को अपना लिया। हालांकि ये काम बड़ा मुश्किल है, मगर मैं आपसे कहता हूँ कैसे तबीयत बदलोगे? मुश्किल को आसान कर दोगे। जब नबी से मोहब्बत सच्ची होगी तो आसान हो जाएगा ये काम। हजरात जी लगाना, कैसे अपनी तबीयत बदलोगे, अपना ख्याल कैसे बदलोगे, अपनी तबीयत कैसे बदलोगे? अल्लाहु अकबर। एक माँ के 4 बेटे हैं, तवज्जो आपकी है? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माँ के 4 बेटे हैं, चारों की तबीयत अलग है, एक ही कोख से जन्म लिया है, एक ही आंगन में परवान चढ़ा है, एक ही बाप की गोद में तरबियत हासिल किया है, मगर चारों बेटों का ख्याल अलग है, चारों बेटों की तबीयत अलग है, चारों बेटों की पसंद अलग है। देखो, एक बेटे को बिरयानी खाना पसंद है, एक बेटे को सादा चावल खाना पसंद है, एक बेटे को सादी रोटी खाना पसंद है, एक बेटे को पराठा खाना पसंद है। सबकी तबीयत अलग अलग हुई कि नहीं? सबका ख्याल अलग अलग हुआ कि नहीं? एक ही माँ के 4 बेटे होते हैं, कोई बड़ा गुस्सीला होता है, कोई बड़ा नर्म मिजाज का होता है, कोई का चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है और कोई हमेशा तंग रहता है। सबकी तबीयत अलग अलग है। भाई सब एक है, एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही बाप के बेटे हैं, मगर तबीयत में इख्तिलाफ है। तबीयत सबकी अलग अलग है, पसंद सबकी अलग अलग है, ख्याल सबका अलग अलग है, नेचर सबका अलग अलग है, रात सबका नेचर अलग। अब माँ ने देखा एक बेटे को बिरयानी खाना पसंद है, एक बेटे को पराठा खाना पसंद है, एक बेटे को सादा खाना पसंद है, एक बेटे को सादी रोटी खाना पसंद है। माँ चाहती तो अपने बेटों को जमा करके कहती, ए मेरे बड़े बेटे आज तुम्हारे पसंद का खाना बना देती हूँ, ए मेरे मंझले बेटे कल तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी, ए मेरे तीसरे नंबर के बेटे परसों तेरे पसंद का खाना बना दूंगी। चौथे नंबर के बेटे से कहते, ए मेरे बेटे छोटे वाले चौथे रोज तुम्हारी पसंद का खाना बना दूंगी। मसला हल हो सकता था, बात बन सकती थी, मगर माँ ऐसा नहीं कहती है। माँ कहती है मेरे बेटे तुम्हारे खाने का पसंद अलग अलग है, तो क्या होगा? तेरी अम्मा तुम पे कुर्बान है, बहुत मोहब्बत तुमसे करती है, बहुत प्यार तुमसे करती है, बहुत अकीदत तुमसे करती है, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे बेटे मैं तेरी ख्याल भी करूंगा, मैं तेरा भी ख्याल करूंगा, ए बेटा तेरा भी ख्याल करूंगा। जिसको जो पसंद है, सबकी पसंद का खाना बनाती है अम्मा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो सोचती है अगर सिर्फ बिरयानी बनाती हो फिर भी 3 बेटे भूखे रहेंगे, अगर सिर्फ सादा चावल बना दो फिर भी 3 बेटे भूखे रहेंगे,
अगर पराठा बना देती हो फिर भी 3 बेटे भूखे रह जाएंगे, सादी रोटी बना दो फिर भी 3 बेटे भूखे रह जाएंगे। अम्मा की अकीदत को गवारा न हुआ, अम्मा की मोहब्बत को गवारा न हुआ, अम्मा के प्यार को गवारा न हुआ। बेचारी सुबह होती है, चूल्हे के पास जाकर बैठ जाती है, पसीने पसीने हो रही है और अपने बेटे के पसंद का खाना बना रही है, अपने बेटे के पसंद का खाना तैयार करती है, चारों बेटों के पसंद का खाना बना रही है। अम्मा हर रोज का यही मामूल है, मेरा बेटा भूखा ना रहने पाए। मोहब्बत बाप के, मोहब्बत बेटों से इतनी है कि बेटा मेरा भूखा ना रहने पाए। एक बेटा भूखा रह जाए तो माँ का कलेजा फट जाए, एक बेटा भूखा रह जाए अम्मा का सुकून छिन जाए, एक बेटा भूखा रह जाए अम्मी बेकरार हो जाए, एक बेटा भूखा रह जाए अम्मी बेचैन हो जाए। तेरे चैन को, तेरी बेचैनी को चैन में बदलने के लिए, तेरी बेकरारी को करार में बदलने के लिए, तेरी बेकरारी को करार में बदलने के लिए अम्मा अपने आप को कुर्बान कर रही है। अम्मा पसीने पसीने हो रही है, वो पसीने पसीने होकर हर एक बेटे के खाना तैयार कर रही है, हर बेटे के पसंद का खाना तैयार करती है। अब एक दिन चारों बेटों ने, चारों भाइयों ने देखा ये तो हर रोज का काम है, एक दिन का तो काम है नहीं। अरे मेरे भाई सुनो, नेचर का बदलना मुश्किल काम है, आदत का बदलना मुश्किल काम है, फितरत का बदलना मुश्किल काम है, तबीयत का बदलना मुश्किल काम है, नेचर का बदलना मुश्किल काम है। मगर बदलो अपनी तबीयत को, बदलो अपने नेचर को, बदलो अपनी आदत को। अगर अपनी आदत पे अटल रहे अम्मा बेचारी मर जाएगी, खाना बनाते बनाते मर जाएगी, हमारी मोहब्बत में मर जाएगी। हर रोज हर एक के पसंद का खाना बनाती है। ए मेरे भाई तू भी सुन, ए बड़े भैया आप भी सुनो, ए महिला भैया आप भी सुनो, ए संजले भैया आप भी सुनो। हम सब मिलकर फैसला कर लो, आज के बाद हम लोग अपनी पसंद का खाना नहीं खाएंगे। जो खाना अम्मी को पसंद है वही खाना हम सबके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह वाह वाह, हम सबके सब वही खाएंगे जो अम्मा को पसंद है। बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा को जो पसंद है वही खाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटों ने इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे दी, बेटों ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। 5 मिनट मेरा टाइम बाकी है, घड़ी देख लीजिए। हाँ नहीं बोलेंगे कैसे, 1 मिनट आगे नहीं बढ़ूंगा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम दोस्तों, जी लगाइए, मैं बड़ी इख्तिसार के साथ बात करके रुखसत होना चाहता हूँ। देखो बेटों ने ये फैसला कैसे ले लिया, बेटों ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। अपनी तबीयत को क्यों बदला, अम्मी की खातिर। अपना ख्याल कैसे बदला, अम्मी की खातिर। इसलिए कि अम्मी हमसे बहुत मोहब्बत करती है, अम्मी बहुत प्यार करती है, इसलिए अम्मा को परेशान न करो, अम्मा को परेशान न करो। अम्मी को परेशान करोगे उसका दिल टूट जाएगा, उसका कलेजा फट जाएगा, उसे परेशान न करो। हम लोग अपनी पसंद का खाना रहे, अपना नेचर बदलो, अपनी आदत बदलो, अपनी फितरत बदलो, अपना ख्याल बदलो, अपना इरादा बदलो। जो पसंद अम्मी को है वही खाओ। क्यों ऐसा, अम्मी बहुत मोहब्बत करती है हमसे, अम्मी हमसे बहुत मोहब्बत करती है। नबी के कलमा पढ़ने वालों सुनो, जितनी मोहब्बत तेरी माँ तुझसे करती है ना, इसका अंदाजा तुझे नहीं है, मगर तेरी अम्मा से 70 गुना ज्यादा तेरा रसूल तुमसे मोहब्बत करता है, तेरे आका तुमसे मोहब्बत करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर अपनी माँ की खातिर अपनी तबीयत बदल सकते हो तो अपने नबी की खातिर तबीयत बदलना पड़ेगा, अपने आका की खातिर तबीयत बदलना पड़ेगा। और अगर बदल दिया ना तो फिर देखना आका कैसे रहमत वाली चादर से ढांपेंगे तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी तबीयत को बदलो, नबी की तबीयत की खातिर जो नबी को पसंद है हम वही करेंगे। मगर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो नबी को ना पसंद है वही हम कर रहे हैं, जो नबी को पसंद है उसके खिलाफ हम जा रहे हैं। नौजवानों, मैं आपको बुलाया था, आपको सुनाया, नौजवानों की बड़ी कीमत है, नौजवान बड़ा अनमोल होता है। मेरे आका ने मक्का की सरजमीन पर जब नबूवत का ऐलान करवाया था, नौजवानों ने साथ दिया था मेरे आका का। आज भी साथ की जरूरत है, आज भी इस्लाम को साथ की जरूरत है, आज भी इस्लाम को सहारे की जरूरत है, आज भी तकवे को सहारे की जरूरत है, आज भी सजदे को सहारे की जरूरत है। आज भी आपको फिर बदलना होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तेरी जवानी बड़ी अनमोल है,
जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था, हजरत उमर की उम्र उस वक्त 27 साल की थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब कलमा पढ़ा था, उस वक्त उनकी उम्र 25 साल की थी। हजरत साद इब्न वक्कास ने जब कलमा पढ़ा था, उस वक्त उनकी उम्र 17 साल की थी। हजरत मुआज बिन जबल ने जब कलमा पढ़ा था, वो फरमाते हैं मेरे आका ने मुझको यमन का गवर्नर बनाकर जब भेजा तो मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे। इस हाल में आका ने यमन का गवर्नर बनाया था। हजरात, तो नौजवान बड़ा अनमोल होता है, नौजवान बड़ा कीमती होता है। आप बड़े कीमती सरमाया हो अपनी कौम के, अपनी हिफाजत करो, अपनी नजर की हिफाजत करो। आपसे गुनाह होते हैं, आपसे खताएं होती हैं, आपसे जुर्म होता है। अब एक बात कह के मैं रुखसत होता हूँ, जुर्म होता कैसे है, गुनाह होता कैसे है, खताएं होती कैसे हैं, गुनाह कब होता है, खताएं कब होती हैं, आदमी आवारा कब होता है? जब इंसान की नजर बहकती है तब दिल बहकता है। नजर बहकती है तब दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तब जुर्म होता है, तब गुनाह होता है, तब खताएं होती है, तब खताएं होती है। तो मेरा ख्याल ये है, अपनी नजर की हिफाजत कर लो, गुनाहों से बच जाओगे। नजर की हिफाजत कर लो, गुनाहों से बच जाओगे। अब मेरे आका की एक हदीस सुनो, मैं रुखसत होना चाहता हूँ। बात बड़ी लंबी है और जिस उन्वान पे मैं खिताब कर रहा हूँ ये बड़ा वसी उन्वान है, बड़ी लंबी तकरीर इस पर हो सकती है, मगर आज मैं आपके सामने ज्यादा देर तक हाय नहीं रहूंगा। गौर से सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, बेजरूरत अपने मकान की छत पे मत जाया करो। अल्लाह, बेजरूरत। मेरे आका कितना प्यार करते हैं जी, कदम कदम पे संभाल रहे हैं, कदम कदम पे रहनुमाई फरमा रहे हैं, कदम कदम पे मोहब्बतें पेश फरमा रहे हैं। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुझे तकलीफ होती है तो मेरा दिल टूट जाता है। तुझे तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुझे कोई खुशी हासिल होती है तो मुझे भी सुरूर मिलता है। कितना प्यार करते हैं तेरे आका तुझसे, तुम हो के अपने आका के प्यार का ख्याल नहीं रखते। आका फरमाते हैं, बेजरूरत अपने घर की छत पे मत जाओ। सवाल पैदा होता है, घर मेरा है, घर की छत मेरी है, अपना मकान है क्यों न जाए, अपने घर की छत है क्यों न जाए। जरूरत हो न हो, ये मकान तो मेरा है, ये बिल्डिंग तो मेरी है, ये महल तो मेरा है, ये छत तो हमारी है, बेजरूरत क्यों न जाए। आका कायनात फरमाते हैं, बेजरूरत अपने घर की छत पे मत जाया करो। जब तुम अपने घर की छत पे जाओगे, तेरे बगल में जिसका मकान होगा उसके आंगन में तेरी नजर पड़ जाएगी, उसके आंगन में तेरी नजर पड़ेगी। आका फरमाते हैं, कयामत के दिन उस नजर का तुमसे सवाल होगा, उस नजर का सवाल तुमसे होगा। दूसरे के खाली आंगन में नजर पड़ जाए तो उस नजर का सवाल कयामत के दिन परवरदिगार हमसे करे। किसी की माँ बहन बेटी पे पूरी नजर जब डालोगे तो बोलो उस नजर का सवाल कयामत में होगा के लगे। तेरी नजरों से जब कोई किसी के पारसाई का जनाजा निकलेगा तो बोलो तेरी उस नजर का सवाल होगा के लगे। तेरी आवारा नजर से किसी की इज्जत और पारसाई खतरे में पड़ेगी तो बोलो तेरी नजर का सवाल होगा कि नहीं। मैं कहता हूँ नौजवानों, अपने नजर की हिफाजत कर लो, गुनाहों से महफूज हो जाओगे, खताओं से महफूज हो जाओगे। आमीन 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 आमीन। हम अपनी नजर को बचा लें। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, क्या आप गुनाहों से बचना चाहते हैं? मैं कहता हूँ बुरी नजर डाल दिया। एक बात कहता हूँ, बस 2 मिनट की बात करता हूँ। किसी पे बुरी नजर डाल दिया, क्या मिला आपको? थोड़ी देर के लिए तेरे नफ्स को सुरूर मिल सकता है, तेरे नफ्स को सुरूर मिल सकता है, बाकी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नजर डाल दिया, गुनाह तो हो गया ना, जुर्म तो हो गया ना, खताएं तो हो गई ना। हज़रात गिरामी, जो इंसान अपनी माँ बहन की इज्जत और पारसाई और उसकी आबरू की हिफाजत नहीं कर सकता, वो दूसरों के माँ बहन बेटियों की हिफाजत कैसे कर सकता है? तेरी नजर का कमाल है, तेरी नजर का बड़ा कमाल ये है कि तू अपने नजर की हिफाजत करे। वो नजर वही इस्तेमाल हो जिस काम के लिए मौला ने नजर दिया है, जिसके लिए बिनाई दिया है। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हो, बात में कह के रुखसत हो रहा हूँ 1 मिनट में। आपको पता होना
چاہیے. جن لوگوں نے ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے پتا ہے ہندوستان میں جب پہلی بار مسلمانوں نے قدم رکھا تھا تو کوئی مسلح لے کے نہیں آیا تھا. کلمہ پڑھانے کے لیے مسلمان پہلی بار نہیں آیا تھا. یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا. یہاں تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. مسلمان ہندوستان سجدہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. جبکہ پہلی بار مسلمان آیا تھا ہندوستان میں قدم رکھا تھا تو وہ موقع ایسا تھا اسلامی مملکت کے شہنشاہ کو پتا چلا ہندوستان کا ایک راجا ہے, ہندوستان کا حکمراں ہے جس نے اپنی سگی بہن سے نکاح کر لیا ہے اور وہ جرم کرتا جا رہا ہے. تو اسلامی مملکت کے شہنشاہ نے فیصلہ لیا بیٹی چاہے کافر کی ہو, بیٹی چاہے مشرک کی ہو, وہ اسلام کی شہزادی ہو گئی ہے, وہ اسلام کی بہن ہو گئی ہے, وہ اسلام کی بیٹی ہو گئی ہے. ملک کے شہنشاہ نے فیصلہ لیا ہم ہندوستان چلتے ہیں, 7 سمندر پار کر کے ہم اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں مگر کسی کی بہن اور بیٹی کو بے آبرو نہیں ہونے دیں گے, بے آبرو نہیں ہونے دیں گے. زندہ باد. اگر تمہاری نظر سے تمہارے پڑوس کی بہو بیٹیاں ہی محفوظ نہیں رہے تو کسی کافرہ کی عزت کیسے بچا سکتے ہو, کسی مشرکہ کی عزت کیسے بچا سکتے ہو. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے نظر کی حفاظت کر لو. وعدہ کرو نوجوانوں آج کے بعد میں نماز روزہ حج زکات اور تقوی کی بات پھر کسی موقع سے کروں گا. آج مجھ سے یہ وعدہ کرو یہ جو گھنونا کام ہے نظر آوارہ ہوتی ہے. میں نے آقا کی حدیث سنایا بے ضرورت اپنی چھت پہ نہ جایا کرو. دوسرے کے خالی آنگن میں تیری نظر پڑے گی, آنگن خالی ہے, تیری نظر اس خالی آنگن میں پڑ جائے تو قیامت کے دن اس نظر کا سوال ہو جائے. میں پوچھنا چاہیے ہوں بتاؤ پیارے مسلمانوں اگر کسی غیر محرم پہ بری نظر ڈالو گے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا. رات بھر لیٹ کر تم زنا کا منظر دیکھتے ہو, بولو اس نظر کا سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا. تجھے پتا ہے قبر میں تیرے آقا جلوگر ہوں گے. جن آنکھوں سے تم نے زنا کا منظر ملاحظہ کیا ہے ان آنکھوں سے اپنے آقا کا جلوہ کیسے دیکھو گے. کہیں ایسا نہ ہو آقا کہہ سکتے ہیں یہ میرا دیوانہ نہیں ہے, پھر کیا کرو گے. اپنی نظر کی حفاظت کر لو. وعدہ کرو آج کے بعد ہماری بری نظر نہیں اٹھے گی. کتنے نوجوان وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ. صرف نظر کی حفاظت کر لیجئے. اچھا ایک مسئلہ بھی سن لیجئے, مسئلہ بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کوئی گزر رہا ہے, آپ راستے سے گزر رہے, کوئی خاتون گزر رہے, کوئی عورت گزر رہی, تیری نظر تو پڑے گی ہی نا, نظر تو پڑے گی. آپ نہیں بچا سکتے نظر کو, نظر پڑ جائے گی مگر جیسے ہی نظر پڑ جائے نظر پھیر لو, نظر جھکا لو, دوبارہ اس پہ نظر مت ڈالو. سبحان اللہ. دوبارہ نظر مت ڈالو. جو تیری پہلی نظر پڑی ہے وہ نظر پڑنا جرم نہیں ہے, وہ گناہ نہیں ہے, وہ خطا نہیں ہے. اب چاہت کے بعد جب دیکھو گے یہ گناہ ہے, چاہت کے بعد جب دوسری نظر ڈالو گے یہ خطا ہے, یہ جرم ہے. اس نظر کا سوال ہوگا. اس لیے اپنے نظر کی حفاظت کرو. آج کا یہی پیغام ہے, نظر کی حفاظت کر لو, گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. جب نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے, دل بہکتا ہے تب جرم ہوتا ہے. میں نے جو کچھ کہا کہیں پر کوئی کوتاہی, کوئی لغزش, کوئی خطا ہو گئی ہو تو مولا کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما, میری توبہ کو قبول و مقبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ. آپ لوگ بھی پڑھیے مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.